Now today we will talk about the extended view of Article 21. With regards to quality of life, I have already explained to you the judgment of Francis Correll versus Administrative Union Territory of Delhi. That is a quotable judgment that you will always quote in the examinations. It is very important. ठीक है, it is a locus classicus. अब उस जजमेंट की वजह से आपको पता है कि आर्टिकल 21 में लाइफ का मतलब मेयरली एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मेयरली एग्जिस्टिंग नहीं होता, बट लिविंग विद ह्यूमन डिग्निटी इज व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड लाइफ अंडर आर्टिकल 21. इसी को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं कि ये टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी का क्या मतलब है. टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी ऑल्सो मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. इसी के अंदर इंक्लूड होता है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, protection of health of men and women and of children of tender age against abuse. It also includes within its ambit the facilities for the children to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, along with the just and humane conditions of work and maternity relief. These are the minimum conditions which must exist in order to enable a person to live with human dignity. And no government can take any action to deprive a person of these basic rights. ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इन द केस ऑफ बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इस एक्सप्रेशन को और इलेबोरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी का मतलब क्या होता है. इट मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, men and women, and of children. It also includes within its ambit protection from abuse. It also includes within its ambits providing for facilities, educational and other facilities for the development of children. It also includes within its ambits humane condition of work and maternity relief. These expressions and these definitions that has been given by the Supreme Court must be quoted in the examinations. So apart from Francis Correll, you will also quote Bandhua Mukti Morcha whenever you are talking about what is meant by the expression to live with human dignity. Okay. Next case on this point would be Chameli Singh versus State of Uttar Pradesh. Citation is AIR 1996 Supreme Court page number 1051. Again, Supreme Court, while dealing with Article 21, held that need for a decent and civilized life includes right to food, water and decent environment. Okay, what did it include? Food, water and decent environment. All of these things are within the expression to live with human dignity. देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लाइफ है, लाइफ मीन्स लिविंग विद ह्यूमन डिग्निटी. अब उस ह्यूमन डिग्निटी के अंदर क्या क्या आता है वो सब बताया जा रहा है आपको. ठीक है, तो चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन एनी ऑर्गेनाइज सोसाइटी द राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी is not ensured by meeting only the animal needs of the man. It is secured when he is assured of all the facilities to develop within himself and is free from restrictions which inhibit his growth. All human rights are designed to achieve this object. Right to live is guaranteed in any civilized society, and it implies right to food, right to shelter, right to decent environment, and right to water, right to education, medical care, etc. These are the basic human rights which are known to any civilized society. तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन इन द लास्ट डेकेड्स, स्पेशली आफ्टर मेनका गांधी, has incorporated many directive principles of state policy which are not enforceable as a part and parcel of fundamental right, and thereby has made them enforceable. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन there were many directive principles of state policy which were generally not enforceable. It was for the government to enact with the it was for the government to actually come with the policies and enact laws for the enforcement of directive principle of state policies. They were fundamental in the governance of the country, but they were not enforceable in the courts of law. But Supreme Court, by the way of interpretation, read many articles of directive principle of state policy and the principles underlying therein as a part and parcel of fundamental rights, especially Article 21. Okay? And on that basis, Supreme Court implied a number of fundamental rights under Article 21. So this change of judicial approach
is marked after Menka Gandhi versus Union of India. That is why Menka Gandhi versus Union of India is considered landmark judgment. It stands as a root of all the fundamental rights that Supreme Court has read as implicit under Article 21. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज राइट टू लाइवलीहुड. अब मेनका गांधी से पहले एक केस था संतराम का, ठीक है. साइटेशन इज AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 932, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू लाइवलीहुड वुड नॉट फॉल विद इन द एक्सप्रेशन लाइफ अंडर आर्टिकल 21. बट आफ्टर द मेनका गांधी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हैड अनदर ओकेजन to deal with this issue, that whether the life includes right to livelihood within itself or not, whether the right to life includes right to livelihood within itself or not. इस पे जो आपका लोकस क्लासिकस है वो है ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 180. ठीक है. Now this case was brought by pavement dwellers to resist eviction from their habitat by Bombay Municipal Corporation, and they argued before the Supreme Court that right to livelihood is born out of right to life, and no person can live without means of living, that is, without the means of livelihood. Supreme Court in this connection observed that the question which we have to consider is whether the right to life includes the right to livelihood. We see not only one answer to that question, namely that it does. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये है उसका पार्ट. The sweep of right to life conferred by Article 21 is wide and far-reaching. It does not mean merely that the life cannot be extinguished or taken away, as for example by imposition and execution of death sentence, except according to the procedure established by law. That is but one aspect of right to life. An equally important facet of that right is right to livelihood, because no person can live without the means of living, that is, means of livelihood. You must remember that if right to livelihood is not treated as a part and parcel of the constitutional right to life, the easiest way of depriving a person of his right to life would be to deprive him of his means of livelihood to the point of abrogation. इसी point में सुप्रीम कोर्ट ने देखा और कोट किया that the state may not by affirmative action be compelled to provide adequate means of livelihood or work to the citizen, but any person who is deprived of his right to livelihood except according to just and fair procedure established by law can challenge the deprivation as offending right to life conferred by Article 21. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड. ध्यान रखिएगा, ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ अ लोकस क्लासिकस. ठीक है, इस पे सवाल आते हैं. तो इस क्लोज रिलेशनशिप पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि दैट विच अलोन मेक्स इट पॉसिबल टू लीव असाइड व्हाट मेक्स लाइफ लिवेबल मस्ट बी डीम्ड टू बी एन इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ. deprive a person of his right to livelihood and you shall deprive him of his life. तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट यही एम्फसाइज करना चाह रहा है कि बिना लाइवलीहुड के लाइफ इम्पॉसिबल है. ठीक है, आप लोग को भी ये बात इम्प्लाइडली पता है. ठीक है, आपके दिमाग में है कि अगर लेट अस सपोज यू आर नॉट अलाउड टू वर्क, देन यू विल डाई ड्यू टू स्टार्वेशन. देखिए, आज की दुनिया में हर चीज़ पैसे से चलती है, बिना पैसे के कोई चीज़ पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, पूरा वर्ल्ड इसी प्रिंसिपल पे चल रहा है. तो अगर by one way or the other, let us suppose I am the state and I deprive you of your right to livelihood, that means I am depriving your life in a sense. ठीक है, in a sense I am making sure that you are unable to earn, and if you are unable to earn you will be unable to eat. If you are unable to eat you will eventually perish, you know that. तो इस सेंस में right to life and right to livelihood are very closely interlinked. ठीक है, इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी रेफर किया था, स्पेसिफिकली आर्टिकल 39 क्लॉज ए, आर्टिकल 37 एंड आर्टिकल 41, एंड पॉइंटेड आउट दैट इफ दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑब्लिगेट द स्टेट टू सिक्योर टू इट्स सिटीजंस एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड एंड राइट टू वर्क, it would be a sheer pedantry to exclude the right to livelihood from the content of right to life. So Supreme Court ruled
in this case that eviction of a person from pavement or slum inevitably leads to deprivation of his means of livelihood, and therefore reasonable, fair and just procedure must be followed for that purpose. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट in this case by the way of interpretation has moved away from the traditional concept of right to life and now has treated right to livelihood as a part and parcel of article 21. आपको ओल्गा तेलिस के केस के कॉन्टेक्स्ट में ये याद रखना है कि इसके फैक्ट्स क्या थे. ठीक है, अब देखिए रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से जो पेवमेंट ड्वेलर्स होते थे दे वर सॉट टू बी एविक्टेड बाय म्यूनिसिपैलिटी. अब पेवमेंट ड्वेलर की वजह से कई प्रॉब्लम अराइज होती थी क्योंकि हज़ारों लोग विलेजेस से माइग्रेट करते थे मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में एंड दे यूज टू स्क्वाट एवरीवेयर इवन ऑन द पेवमेंट्स एंड लिव्ड इन अ वेरी पिटिएबल कंडीशंस. और म्यूनिसिपैलिटी का केस ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि किसी के भी पास कोई लीगल राइट नहीं है टू इंक्रोच ऑन द फुटपाथ ओवर विच द पब्लिक हैज़ अ राइट टू वे. म्यूनिसिपैलिटी अपने सेंस में करेक्ट भी थी, पर पेवमेंट ड्वेलर्स ने आर्टिकल 21 का रिकोर्स किया टू स्टॉल देयर एविक्शन प्रोसीडिंग्स. उन्होंने आर्ग्यू किया था कि एविक्शन वुड एडवर्सली अफेक्ट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड विच इज़ इंक्लूडेड विद इन आर्टिकल 21 and it can only be taken away or abroged by following a fair, just and reasonable procedure. अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या रूल किया कि yes, right to livelihood is a part and parcel of article 21. पर आपको याद होगा कि मैंने आपको कई केस बताए थे कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखिए किसी के भी पास पब्लिक प्रॉपर्टी पे स्क्वाट करने का एब्सोल्यूट राइट नहीं है. तो ओल्गा तेलिस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इवन इफ रिमूवल ऑफ pavement dwellers would lead to deprivation of their livelihood and hence life for the purpose of article 21, article 21 does not place an absolute embargo on the deprivation of life or personal liberty. What article 21 insists is that such deprivation ought to be according to the procedure established by law, which should be just, fair and reasonable. Therefore anyone who is deprived of his life to livelihood without just and fair procedure established by law can challenge the deprivation as being against article 21. This means that anyone who is sought to be evicted by municipality must be given a notice and a hearing. तो इसी कनेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने म्यूनिसिपैलिटी का जो राइट है टू रिमूव द पेवमेंट ड्वेलर्स फ्रॉम द फुटपाथ और विच द पब्लिक हैज़ द राइट टू पैसेज, इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइवलीहुड तो है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप राइट टू लाइवलीहुड किसी भी गली मोहल्ले में एक्सरसाइज करने लगे. देयर वुड बी स्पेशल हॉकिंग जोन जहाँ पे आप अपनी शॉप सेटअप कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपना सामान बेच सकते हैं. यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू लाइवलीहुड देयर. और एक जस्ट, फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर से ही आपको इविक्ट करवाया जा सकता है. तो म्यूनिसिपैलिटी जो आपको इविक्ट कर रही है उसको आपको एक नोटिस और हियरिंग का मौका देना पड़ेगा, आपको मतलब स्लम ड्वेलर्स को. ठीक है, उस सिचुएशन में. इसी कनेक्शन में सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द कंटेंशन ऑफ द स्क्वाटर्स दैट द क्लेम टू कंस्ट्रक्ट हट्समैन ऑन पेवमेंट्स एंड दैट ऑफ पेडेस्ट्रियंस टू यूज द पेवमेंट आर कंपीटिंग क्लेम्स एंड द फॉर्मर ऑट टू बी प्रेफर्ड ओवर द लैटर. मतलब एक और कंटेंशन था स्लम ड्वेलर्स का इस केस में कि हम अपना हट या शॉप पेमेंट्स पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं और पेडेस्ट्रियंस का राइट टू मूव है पब्लिक स्ट्रीट्स पे. ये दोनों कंपीटिंग क्लेम्स हैं और जो हमारा राइट है कंस्ट्रक्ट करने का हट्स और शॉप का, इट शुड हैव प्रेसिडेंस ओवर एवरी अदर राइट. इस बात से सुप्रीम कोर्ट डिसएग्री कर गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं 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 नहीं, दिस लाइन ऑफ रीजनिंग इज नॉट करेक्ट. ठीक है, बस सुप्रीम कोर्ट ने मेनली ये बोला था कि देयर शुड बी ए रीजनेबल प्रोसीजर. वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट फॉर नोटिस और एक हियरिंग ज़रूरी होगी, एक्सेप्ट इन द केस वेयर अर्जेंट सिचुएशन हैज़ अरिजन, जहाँ पे बिना नोटिस या हियरिंग के भी एविक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ अर्जेंट सिचुएशन में हो सकता है. जनरली क्या है, नोटिस और हियरिंग देने के बाद ही एविक्ट किया जाएगा स्लम ड्वेलर्स को. ठीक है, तो बेसिकली ओल्गा तेलिस का जो केस है वो राइट टू लाइवलीहुड पे लोकस क्लासिका से ध्यान रखिएगा. ऐसे ही रिमूवल ऑफ हट्स कंस्ट्रक्टेड बाय द पेवमेंट ड्वेलर्स ओवर म्यूनिसिपल लैंड, इस बात को लेके एक और केस लॉ उठा था. उस केस का नाम है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस नवाब खान गुलाब खान. ठीक है, साइटेशन इज AIR
1997 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 152, और सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट द म्यूनिसिपैलिटी कैन रिमूव द हट्स बाय फॉलोइंग द रीजनेबल प्रोसीजर, अगेन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ओल्गा तेलिस, and said that under Article 21 a person can be deprived of his life or personal liberty by following a reasonable procedure, and it is for the court to decide in exercise of its constitutional power of judicial review whether the deprivation of life or personal liberty in a given case is by procedure which is reasonable, fair and just, और इट इज़ अदरवाइज। मतलब ये है कि फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड कि जो प्रोसीजर है वो रीजनेबल है या नहीं है, ये कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर कोर्ट डिसाइड करेगा। द फाइनल से इज नॉट विद द लेजिस्लेचर, द फाइनल से इज विद द जुडिशरी। वैसे ही सोदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का भी केस आपको बता चुका हूँ, वो मैंने आपको आर्टिकल 19 जब पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बताया होगा कि जो हॉकर्स है वो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी टू ट्रेड और बिजनेस ऑफ देयर चॉइस बट हैव नो राइट टू डू सो एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उसके लिए सोदान सिंह है, ठीक है। याद रखिएगा ओल्गा तेलिस का जो केस है वो स्लम ड्वेलर्स और राइट टू लाइवलीहुड से डील करता है, ठीक है। वाइल हॉकर्स का पर्टिकुलरली स्लम ड्वेलिंग और राइट टू लाइवलीहुड से नहीं, हॉकर्स का पर्टिकुलरली जो केस है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी वाला जिसमें आर्गुमेंट लिया गया था वो सोदान सिंह वाला केस है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों काफ़ी इंटर रिलेटेड है, बट यू शुडंट बी कंफ्यूज्ड विद इन देम, ठीक है। सोदान सिंह का प्रॉपरली हॉकर से रिलेटेड है, वाइल ओल्गा तेलिस इज मोर रिलेटेड टू राइट टू लाइवलीहुड एंड स्लम ड्वेलर्स। अब देखिए पब्लिक प्लेस पे स्लम ड्वेलर्स क्या करते थे, अपनी हट भी बनाते थे और अपनी शॉप भी कंस्ट्रक्ट करते थे, तो वो हॉकिंग भी कर रहे थे और उस लैंड को इंक्रोच भी कर रहे थे बाय बीइंग देयर, ठीक है। तो वहाँ पे लाइवलीहुड का भी सवाल था और वो वहाँ पे रह भी रहे थे, ठीक है। तो लाइवलीहुड तो थी ही, वो रह भी रहे थे। तो ओल्गा तेलिस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास राइट टू लाइवलीहुड है, पर ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी कर सकते हैं। देयर शुड बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जहाँ पे आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करिए, पर ऐसा नहीं कर सकते आप म्यूनिसिपल लैंड को इंक्रोच कर लें, ठीक है। ये अलाउ नहीं होगा, तभी म्यूनिसिपैलिटी को अलाउ किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट टू अवेक्ट दीज स्लम ड्वेलर्स बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल प्रोसीजर। मतलब वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट फॉर नोटिस एंड हियरिंग ज़रूर होगी, ठीक है। हॉकर्स के केस में था जो सोदान सिंह में था, सोदान सिंह में ये था कि उनके पास किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अपना ट्रेड या बिजनेस कैरी करने का राइट नहीं है, ठीक है। तो दोनों को प्लीज़ कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, हालांकि दोनों ओवरलैप काफ़ी करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्लम ड्वेलिंग का और राइट टू लाइवलीहुड का। ऐसे ही बड़ा एक और इंटरेस्टिंग केस है, वो है दिल्ली डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चरल एम्प्लॉयज़ यूनियन वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 789, ठीक है। अब इसमें पता है क्या आर्गुमेंट लिया गया था, इसमें आर्गुमेंट लिया गया था कि राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड है, तो इसका मतलब राइट टू वर्क भी है इसमें, मतलब सरकार की जिम्मेदारी है हमको वर्क देना, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि देयर इज नो डाउट दैट द ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एंड एज अ नेसेसरी लॉजिकल corollary the right to life would include right to livelihood and therefore right to work, but in this context of Article 21, which seeks to protect person against the deprivation of their life except according to the procedure established by law, does not obligate the state to provide work or livelihood to the people, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बताया इतना भी एक्सटेंड आप नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि स्टेट की जिम्मेदारी है हमको वर्क या लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट पे। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन जो फॉल करता है वो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 41 में फॉल करता है, जहाँ पे स्टेट की जिम्मेदारी बनती है टू प्रोवाइड यू ऑल लाइवलीहुड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला इस कॉन्टेक्स्ट में कि दिस कंट्री has so far not found it feasible to incorporate the right to livelihood as a fundamental right in the constitution. This is because the country has so far not attained the capacity to guarantee it, and because it considers it, and not because it considers it any less fundamental to लाइफ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए अभी हमारी कंट्री की वो पोजीशन नहीं है, आगे आज से 50 साल बाद अगर हमारी कंट्री इतनी इवॉल्व कर जाती है कि वेयर द स्टेट हैज़ द पावर टू डू सो, तो कोई भरोसा नहीं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 का पार्ट ही मान ले राइट टू वर्क, है ना, कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर
इस कॉन्टेक्स्ट में अभी की क्या सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वर्क को लेके ये बोला है कि अभी की सिचुएशन में ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 41 से प्रॉपरली गवर्न होता है, ठीक है, which enjoins upon the state to make effective provision for securing the same within the limits of its economic capacity and development. Thus, even while giving the directions to the state to ensure right to work, the constitution makers thought it prudent not to do so without qualifying it. तो बेसिकली आप एक सेंस में ये समझ सकते हैं कि कोई पॉजिटिव मैंडेट नहीं है आर्टिकल 21 का स्टेट के ऊपर. बेसिकली मैंडेट ये है इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि वो डिप्राइव ना करे, ठीक है. वैसे राइट टू लाइवलीहुड पे और केसेस बताता हूँ. ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2086. अब इमाम्स मस्जिद में रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, पर उनको कोई रेन्यूमरेशन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 में, क्लेमिंग दैट दे हैव बीन पेड नो रेन्यूमरेशन and their right to life is being affected, so they should be paid a remuneration. Supreme Court ruled that right to life enshrined in Article 21 means right to live with human dignity. Therefore, imams are entitled to get remuneration. Court rejected the argument of the Waqf board that their financial position is not such that they could cope up with the obligation of paying salary to imams, with the remark that the financial difficulty of the institution cannot be above the fundamental right of the citizen, and hence the Supreme Court said that it is the duty of the Waqf board to pay the remuneration of the imam. मतलब मुफ्त में काम करने का कोई प्रिंसिपल नहीं है और वहाँ पे रेन्यूमरेशन पे करनी पड़ेगी, ठीक है. दैट इज द क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट, और उनके ऊपर ये मेन बर्डन फॉल करेगा वक्फ बोर्ड के ऊपर, ठीक है. वक्फ बोर्ड को इमाम्स की सैलरी देनी पड़ेगी. वाई? बिकॉज राइट टू लाइवलीहुड इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21. वैसे ही एक केस है DTC वर्सेस DTC मजदूर कांग्रेस. साइटेशन इज AIR 1991, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 101. इसमें देयर वाज अ रेगुलेशन विच कन्फर्ड पावर ऑन द अथॉरिटी टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ अ परमानेंट एंड कन्फर्म्ड एम्प्लॉई by issuing a notice without assigning any reason and without giving him a hearing. Supreme Court held that to be wholly arbitrary and violative of Article 21. इसको Article 14 का भी वायलेशन वैसे माना गया था, बट मेन हम Article 21 की बात कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड. The right to livelihood therefore cannot hang on the fancies of the individuals in authority. The employment is not a bounty from them, nor can its survival be at their mercy. Income is the foundation of many fundamental rights, and when work is the sole source of income, the right to work became a fundamental right. Fundamental rights can ill afford to be consigned to this limbo of undefined premises and uncertain applications that would be a mockery of them. तो इस रेगुलेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया था. इसको हेनरी 8 क्लॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. ये कोई टेक इट और लीव इट वाली जो कंडीशंस है ना, सुप्रीम कोर्ट फ्राउन्स अपॉन इट. इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रेल्म में भी एक्सटेंशन मिलता है, ठीक है. तो ये DTC वर्सेस DTC मजदूर कांग्रेस का केस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. याद रखिएगा, यहाँ पे इस रेगुलेशन को उड़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है. रेगुलेशन का पर्पस बस इतना था, एक सर्विस रेगुलेशन थी. यू डोंट नीड टू गेट इट इनटू डिटेल्स. बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें जो अथॉरिटी थी, इट हैड द पावर टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ एनी परमानेंट एम्प्लॉय विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस एंड विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग. तो जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है. इट फेल फाउल ऑफ आर्टिकल 21 एंड हेंस वाज स्ट्रक डाउन. याद रखिएगा, सो फार राइट टू वर्क इज नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है. अगर राइट टू वर्क वुड हैव बीन पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट तो जॉब लेना बहुत आसान हो जाता. सीधे नहीं, रिट पिटिशन करिए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा स्टेट को, कोई ना कोई जॉब मिल जाती. खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये केस लॉ है आपका M. पॉल एंथनी वर्सेस बिहार गोल्ड माइंस लिमिटेड, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1416.
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग इज सस्पेंडेड पेंडिंग द होल्डिंग ऑफ अ डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, द सस्टेंस अलाउंस मस्ट बी पेड टू हिम। ठीक है, और इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट सरेंडर हिज राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 और द बेसिक ह्यूमन राइट्स। नॉन पेमेंट ऑफ सस्टेंस अलाउंस इज एन इनह्यूमन एक्ट विच एन unpropitious effect on the life of an employee, which has an unpropitious effect on the life of an employee। अब ये जो टर्म है unpropitious, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज़ अनफेवरेबल। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड वर्ड था, इसीलिए पहले मैंने उसे एकदम इस तरीके से प्रोनाउंस किया कि आपको स्पेलिंग समझ में आ जाए। इसकी स्पेलिंग है UNPROPITIOUS। इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस किया जाएगा अनप्रोपिशियस। ठीक है, इसका बेसिकली क्या मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ अनफेवरेबल या समथिंग विच डज नॉट इंडिकेट अ चांस ऑफ सक्सेस। वर्ड मीनिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं जुडिशरी में, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे एक और केस था आपका सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी, AIR 2006, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1806। इसमें again Supreme Court reiterated that right to work or right of employment is not within the ambit of Article 21 as of now। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट टू मेडिकल केयर पे। नेक्स्ट केस इज परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये राइट टू मेडिकल केयर पे लोकस क्लासिकस है, कोट करना पड़ता है इसको। ठीक है, इसका साइटेशन है AIR 1989, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2039। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन मेडिको लीगल केसेस सच एज एक्सीडेंट। इन दीज केसेस डॉक्टर यूजुअली रिफ्यूज टू गिव इमीडिएट मेडिकल एड टू द विक्टिम टिल द लीगल फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड। आपने भी कई बार सुना या देखा होगा, और इसकी वजह से कई बार इंजर्ड लोग मर जाते थे बिकॉज ऑफ वांट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई कर दिया दैट द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। वंस लाइफ इज लॉस्ट स्टेटस को एंटे कैन नॉट बी रिस्टोर्ड एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर टू प्रिजर्व द लाइफ whether the concerned person be a criminal or an innocent person. So Article 21 cast on the state an obligation to preserve life. इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, एंड आई रीड इट फॉर यू. A doctor at the government hospital positioned to meet his state obligation is duty bound to extend medical assistance for preserving life. Every doctor, whether at government hospital or otherwise, has a professional obligation to extend his services with due expertise for protecting life. No law or state action can intervene to avoid the delay or the discharge of the paramount obligation cast upon the members of medical profession. The obligation being total, absolute and paramount, laws of procedure whether in statute or otherwise which would interfere with the discharge of this obligation cannot be sustained and must therefore give away. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भी लॉ अगर ये कहता है, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस हो या कोई भी रेगुलेशंस हो जो कह रही हो कि जब तक लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो जाती तब तक मेडिकल एड नहीं दी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दे विल ऑल फॉल फाउल ऑफ आर्टिकल 21. ठीक है. Supreme Court continued and said that Article 21 of the Constitution cast an obligation on the state to preserve life. The patient, whether he be an innocent or be a criminal liable to punishment under the laws of the society, it is the responsibility of those who are in charge of the health of the community to preserve life so that innocent may be protected and the guilty may be punished. Social law do not contemplate death by negligence to be tantamount of legal punishment. Every doctor, whether it is the government hospital, whether he is at the government hospital or otherwise, has a professional obligation to extend his services with due expertise to protecting life. तो ये जो सारी चीज़ें जो चल रही थी ना कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ या तो कोई इंजर्ड है, डॉक्टर कह रहे नहीं पहले आप FIR करवाइए तब हम मेडिकल एड देंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट इज़ द वायलेशन ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ. और अगर ऐसा कोई लॉ या रेगुलेशन है
जो रोकता है डॉक्टर्स को मेडिकल एड देने से, तो वो सारे लॉज और रेगुलेशन आर फॉलिंग फाउल ऑफ आर्टिकल 21। तो परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी मैटर पे एक और केस है, पश्चिम बांग खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2426। इस केस में क्या हुआ था, मजदूर फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन एंड वाज इंजर्ड, seriously injured. He was sent from one government hospital to another, and finally he had to be admitted in a private hospital where he had to incur an expenditure of 17,000 on his treatment. ये कब की बात हो रही है? This judgment was reported in 1996, ठीक है? तो मतलब it was मतलब fairly a hefty amount. 1996 में 17,000 used to be a very big amount. Feeling aggrieved at the callous attitude shown by the various government hospitals, he filed a writ petition in the Supreme Court under Article 32. Supreme Court ने रूल किया कि Constitution envisages the establishment of a welfare state, and in a welfare state the primary duty of the government is to provide adequate medical facility for the people. The government discharges this obligation by running hospitals and the health centers to provide medical care to those who need them. Article 21 imposes an obligation on the state to safeguard the right to life of every person. Preservation of human life is thus of paramount importance. इस बात पे आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो मेडिकल ऑफिसर जो उसके अंदर एम्प्लॉयड है आर ड्यूटी बाउंड टू एक्सटेंड मेडिकल असिस्टेंस फॉर प्रिजर्विंग ह्यूमन लाइफ. Failure by government hospital to provide timely medical treatment to a needy person violates his right to life guaranteed by Article 21. इस केस पे गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पिटिशनर का राइट अंडर आर्टिकल 21 हैज़ बीन वायलेटेड सिंस ही वाज डिनाइड द ट्रीटमेंट व्हेन ही वाज इन क्रिटिकल स्टेट एंड नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. Since his right under Article 21 was denied by government servant, state is liable to pay him compensation for the breach of his right guaranteed under Article 21. The court awarded him a sum of 25,000 as compensation. इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शंस दिए फॉर अवॉइडेंस ऑफ सच इंसिडेंट इन द फ्यूचर एंड टू इंश्योर मेडिकल अटेंशन एंड ट्रीटमेंट टू द पर्सन्स इन रियल नीड. अब एक बार बता दें, ऐसे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में पास किए हैं. उन डायरेक्शंस का रिप्रोडक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पे. आपको सिर्फ परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मेन कोट करना है. जब वो कोट कर लेंगे तो उसके बाद अगर आपको टाइम मिले एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर में, तब आप ये मतलब आपको पता हो कि भाई काफ़ी टाइम है, 3 घंटे में काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तब आप एक्स्ट्रा लिखिएगा, ठीक है. आई डोंट थिंक कि आपको डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा लिखना होगा. हाँ, इस केस में एक और आर्ग्यूमेंट लिया गया था कि स्टेट ने आर्ग्यूमेंट लिया था कि उनके पास पैसा नहीं है इतना कि वो डायरेक्शंस पूरे कर पाएँ टू प्रोवाइड एडिकल मेडिकल नीड्स टू द पीपल. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट कैन नॉट अवॉइड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल एड टू दीज पीपल ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट. और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो भी डायरेक्शंस बन रहे थे उनका ऑल इंडिया एप्लीकेशन कर दिया था. अब मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अभी जो भी स्टेट ने डायरेक्शंस पाए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, आप ये मत समझ लीजिएगा कि इन डायरेक्शंस का मतलब ये हो गया है कि सबके पास फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का राइट है. नो, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का नहीं है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी दी जा सकती हैं जितना फाइनेंशियल परमिट स्टेट के पास है. यही पॉइंट उठा था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम बग्गा में, ठीक है. AIR 1988, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1703. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं होते ना किसी भी प्रोजेक्ट पे स्पेंड करने के लिए, तो फ्री और फुल मेडिकल एड हर सिचुएशन में टू बी रिम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ये राइट नहीं है, ठीक है. कि मान लीजिए अगर किसी को कुछ हो गया तो वो रिट पिटिशन के थ्रू स्टेट से पैसा नहीं लेगा कि नहीं देखिए आपकी जिम्मेदारी ठीक करना. परमानंद कटारा और पश्चिम बांग खेत मजदूर समिति के केस में फैक्ट्स पेक्यूलियर थे कि भाई किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जा रहा है, ट्रीटमेंट ही नहीं किया जा रहा है. इन सारी चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जिम्मेदारी बनती है उनकी ट्रीट करना, ठीक है. एग्जॉर्बिटेंट फीस पे तो ट्रीट करना अलाउड ही नहीं है उनको, वो तो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से करेंगे. लेकिन
मैं नहीं चाहता कि आप इसका मतलब ये निकाल लें कि किसी भी सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो जाए, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो वो सीधे रेट पिटिशन कर रहा है कि भाई स्टेट मेरा खर्चा उठाए, नहीं ऐसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। अब जरा लेबर हेल्थ की बात कर लेते हैं। अब देखिए लेबर हेल्थ एक ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है, ठीक है। अब जो लोग माइंस में वर्क करते हैं, फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, दे आर एक्सपोज टू सर्टेन गैसेस एंड सर्टेन एलिमेंट्स जिनकी वजह से उनको डिजीज़ या एक्सीडेंट्स झेलने पड़ सकते हैं। तो ये जो हेल्थ हैज़र्ड्स जो लेबर्स फेस करते हैं, इनका क्या सीन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 21। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। केस का नाम है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 27 जनवरी 1995 को डिसाइड हुआ था। अब इसमें हेल्थ हैज़र्ड्स वर बीइंग फेस्ड बाय द वर्कर्स इन द एस्बेस्टोस फैक्ट्रीज एंड दैट वाज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ प्लेथोरा ऑफ केसेस जहाँ पे एक्सप्रेशन राइट टू लाइफ पे एलैबोरेट किया गया है, तो कौन कौन से केसेस देखे? ओल्गा तेलिस का केस देखा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपका सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन देखा, फिर विक्रम देव सिंह, चार्ल्स शोभराज वर्सेस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन सब को रेफर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली होल्ड किया कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू हेल्थ मेडिकल एड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड विगर ऑफ अ वर्कर वाइल इन सर्विस और पोस्ट रिटायरमेंट is a fundamental right under Article 21 read with directive principles in Article 39 Article 39 Clause 1, Article 41, Article 43, Article 48A and all the related articles and fundamental human rights to make the life of the workman meaningful and purposeful with the dignity of the person. तो सुप्रीम कोर्ट ने इन डायरेक्शंस के इन्फोर्समेंट के लिए अपना आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ किया और डायरेक्शंस दिए कि चाहे स्टेट हो या प्राइवेट एम्प्लॉयर हो, in order to make the right to life meaningful, to prevent the pollution of the workplace, to protect the environment, the protection of health of a workman, or to preserve free and unpolluted water for the safety and health of the people, the authorities or even private persons or industries are bound by the direction issued by the Supreme Court under Article 32 and 142 of the Constitution. And the workmen and workers affected by asbestosis are suffering from lung cancer and related ailments and they were not properly diagnosed. So in this connection Supreme Court says that the employer is vicariously liable to pay damages, in this case कि वो damages pay करे workmen को, और इस केस में डिफेंस ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा. इट इज़ एन इनएप्लीकेबल एंड एलियन कंसेप्ट टू द गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, and this concept of sovereign immunity is not available when article 21 is an issue. अब एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूं बीच में रोक के इस केस लॉ को, कि सॉवरेन इम्यूनिटी की जो बात है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिकली सीधे नहीं आया था. पहले सॉवरेन इम्यूनिटी के डिफेंसेस अलाउ करता था, बहुत बाद में सुप्रीम कोर्ट केम टू द कंक्लूजन कि नहीं, मॉडर्न डेमोक्रेटिक टाइम्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम्स में, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं सबके, वहाँ पे ये जो डिफेंस है सॉवरेन इम्यूनिटी, इसको बड़ा ही लिमिटेड स्फेयर में रखना पड़ेगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142 के परसुएंस में क्या कहते हैं, कंपनसेशन का डायरेक्शन दिया, जिससे वर्कमेंस हु वर सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर उनका इलाज हो सके और उनको एडिक्वेटली कंपनसेट किया जा सके. इस एस्पेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत इस केस में एलैबोरेट किया था. ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कंपनसेशन इस केस में ऑर्डर की गई थी, कंपनसेशन मिल गई थी वर्कर्स को. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का वही बातें रिइटरेट किए थे. तो बेसिकली आपको कहना है हेल्थ ऑफ अ लेबर इज कवर्ड विद इन आर्टिकल 21. ठीक है, आपको शॉर्ट में अगर बोलना हो तो आप बोलेंगे कि द राइट टू हेल्थ, मेडिकल एड एंड to protect the health and vigor of the worker while in service or post retirement is a fundamental right guaranteed under article 21. फिर अगर केस लॉ कोट करना होगा तो कौन सा कोट करेंगे?
आप करेंगे कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस कंक्लूजन में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 39, 41, 43 और आर्टिकल 48A को फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21 से इंटरलिंक करके रीड किया था। ठीक है, तो हेल्थ केयर ऑफ द वर्कर्स हो गया। केयर होम्स को लेके एक बात बताता हूँ। देयर इज दिस केस ऑफ विक्रम देव सिंह तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो केयर होम्स हैं स्टेट ऑफ बिहार में वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, उनकी कितनी बुरी दशा है। ठीक है, उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम लिविंग कंडीशंस और ह्यूमन डिग्निटी से, जिससे वो लोग जो उस केयर होम में रह रहे हैं रह पाएँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शंस दिए फॉर दी एमिलियोरेशन ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, जैसे उनकी सिचुएशन बेटर हो सके। तो वो विक्रम देव सिंह तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में हुआ था। वो केस ऐसा सच पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं बताए दे रहा हूँ तब भी, स्टडी नोट्स में वो आपको मिला हुआ है केस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्या राइट टू शेल्टर इज़ द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो सवाल था ये दो केसेस में रह चुका है। एक है शांतिसार बिल्डर्स वर्सेस नारायण खिमलाल तोतामे और दूसरा है चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो शांतिसार बिल्डर्स वर्सेस नारायण खिमलाल तोतामे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, साइटेशन बता दो इसका, AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 191। सुप्रीम कोर्ट said that the right to life is guaranteed in any civilized society and would take within its sweep right to food, right to clothing, right to decent environment and reasonable accommodation to live in. The difference between the need of an animal and the human being for shelter has to be kept in view, because for an animal the bare protection of body would suffice, but for a human being it has to be a suitable accommodation that which will allow him to grow in every aspect, physical, mental and intellectual. ठीक है, वैसे ही चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू शेल्टर को फिर एम्फेसाइज करते हुए बोला था कि द शेल्टर फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ मियर प्रोटेक्शन ऑफ हिज लाइफ एंड लिम्ब, it is home where he has opportunities to grow physically, mentally, intellectually and spiritually. Right to shelter therefore includes adequate living spaces, safe and decent structure, clean and decent surroundings, sufficient light, pure air and water, electricity, sanitation and other civic amenities like road etc., so as to have easy access to his daily avocation. The right to shelter therefore does not mean a mere right to a roof over one's head, but a right to all the infrastructure necessary to enable him to live and develop as a human being. Right to shelter, when used as an essential requisite to right to life, should be deemed to have been guaranteed as a fundamental right. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट in the case of PG Gupta versus State of Gujarat went one step further and said that right to shelter is in Article 19, Clause 1, Subclause E, G and Article 21. तो मतलब उन्होंने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के थ्रू राइट टू रेसिडेंस एंड सेटलमेंट के थ्रू ये राइट टू शेल्टर भी निकाल लिया. So basically the protection of life guaranteed by Article 21 encompasses within its ambit the right to shelter, to enjoy a meaningful right to life, and the right to residence and settlement is a fundamental right under Article 19 Clause 1 Subclause E is a facet of inseparable meaningful right to life as under Article 21. तो मैं तो आपको recommend करूँगा कि जब भी इस पे आंसर लिखें तो आप आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सॉरी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, जी और ई और आर्टिकल 21 को लिंक करते हुए अपना एक आर्गुमेंट दें कि राइट टू लाइफ इन्हीं से निकल के आता है और राइट टू शेल्टर इज विद इन द एम्बिट ऑफ दैट राइट टू लाइफ. बेसिकली ये मत कहिएगा राइट टू लाइफ इससे आता है, राइट टू लाइफ तो आर्टिकल 21 में, राइट टू शेल्टर इससे आता है. ठीक है, सो यू लिंक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ई जी रेड विद आर्टिकल 21. तो आर्टिकल 21 में जो लाइफ है, लाइफ की डेफिनेशन दीजिए और फिर अपने एक आर्ग्यूमेंट इस्टेब्लिश कर दिए कि राइट टू शेल्टर ऐसे आता है. उस पर केस लॉ भी मेंशन कर सकते हैं, दैट वुड सफाइस. ठीक है, मैंने केस लॉ आपको मतलब भर के बता दिए. अब आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, वो है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस उमेद राम. ठीक है, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट पे नंबर 847. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स बताया ऑन इन हिली एरियाज फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ राइट टू लाइफ.
See, the entire Himachal Pradesh is in hills, and without workable roads, no communication is possible. The access of people in such an area to life outside is obstructed by the absence of roads. Then Supreme Court reading Article 21, Article 19 Clause 1 Subclause D together in the background of directive principle of state policy under Article 38 Clause 2 said that every person has a right under Article 19 Clause 1 Subclause D to move freely throughout the territory of India. And they also have under Article 21 a right to life, which embraces not only physical existence of life but the quality of life. And for residents of hilly areas, access to road is access to right to life itself. Then Supreme Court said that we accept the proposition that there should be road for communication in reasonable condition in view of our constitutional imperatives, and a denial of that right would be a denial of the life as understood in its richness and fullness by the ambit of the Constitution. To the residents of the hilly areas, as far as feasible and possible, society has a constitutional obligation to provide roads for communication. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ सेक्सुअल हरासमेंट एंड आर्टिकल 21. इस पे जो लोकस क्लासिकस है वह विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 13 अगस्त 1997 को डिसाइड हुआ. अब ये रिट पिटिशन क्यों फाइल हुआ था? It was filed on behalf of working women, and it was filed under Article 14, 19 and 21 of the Constitution of India in the view of the prevailing climate in which the violation of these rights was not uncommon. Now, to prevent sexual harassment of working women in the workplaces, they approached the judiciary to fill the vacuum in the existing legislation. कोई proper legislation था नहीं. वर्क प्लेस के सेक्सुअल हरासमेंट को लेके जो लेजिस्लेशन आया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच सेक्सुअल हरासमेंट वो 2013 में आया है. तो 1997 से लेके 2013 तक विशाखा गाइडलाइंस हैव हेल्ड द फील्ड. ठीक है, और जहाँ पे भी वो 2013 का जो लेजिस्लेशन आया है वो अप्लाई नहीं करता, वहाँ पे विशाखा गाइडलाइंस अभी भी अप्लाई करेंगी. तो बेसिकली विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द मीनिंग एंड द कंटेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ऑफ सफिशिएंट एम्पलीट्यूड टू एनकम्पास ऑल द फेसेट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी इंक्लूडिंग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज. Sexual harassment violates the victim's fundamental rights under Article 19 to practice any profession or to carry out any occupation or trade or business. Further, in the international convention and norms, it is the duty of the court to be proactive for the protection of women. तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट लिया गया था कि इंडियन लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस यूज़ नहीं किए जा सकते. सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए बोला कि ये एक अब एक्सेप्टेड रूल बन चुका है जुडिशियल कंस्ट्रक्शन का कि वेन एवर वी आर इंटरप्रेटिंग द लॉज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रूइंग डोमेस्टिक लॉ when there is no inconsistency between them and there is a void in domestic law. ठीक है, मेरे वर्ड्स पे गौर करिएगा. इंटरनेशनल कन्वेंशन और नॉर्म कब यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू कंस्ट्रू डोमेस्टिक लॉ? when there is no inconsistency between them and there is a void in domestic law. So there was an absence of domestic law with regards to sexual harassment at workplace. So Supreme Court itself created the law by using Article 32. ठीक है, मैंने गाइडलाइंस रख दी हैं, मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बता भी देता हूँ. जैसे कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर और अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन वर्क प्लेस एंड इंस्टीट्यूशंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट and to provide for procedure for resolution, settlement and the prosecution of the acts of sexual harassment by taking all steps required. फिर sexual harassment की definition सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्या है. It includes whether directly or by implication things such as physical contact or advances, demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornography or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. When any of these acts is committed in the circumstances under the victim of such conduct has a reasonable apprehension that in relation to the victim's employment or work in which she is drawing salary
or honorarium or voluntarily, whether in government, public, or private enterprise, such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem, then that would be the violation of the right. अब क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स थे? प्रिवेंटिव स्टेप्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑल एम्प्लॉयर्स और पर्सन इन चार्ज ऑफ वर्क प्लेस वेदर इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर शुड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट. इसके लिए देयर वाज एन एक्सप्रेस प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एज डिफाइंड. फिर रूल रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट and public sector bodies relating to the conduct and discipline should include rules and regulations prohibiting sexual harassment and provide for appropriate penalties in the rules against the offender. Private employers should include the aforesaid prohibitions in the standing orders under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. फिर appropriate work conditions should be provided in respect of work, leisure, health and hygiene to further ensure that there is no hostile environment towards women at the workplace, and no employee woman should have a reasonable grounds to believe that she is at a disadvantage in the connection with her employment. फिर criminal proceeding के लिए एक point रखा कि जब conduct ऐसा है which amounts to specific offence तो IPC में prosecution होगा. और यहाँ पे ये भी इंश्योर करना होगा कि विक्टिम और विटनेसेस आर नॉट विक्टिमाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वाइल डीलिंग विद द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. फिर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बनाया वो ये था कि जहाँ पे कंडक्ट ऐसा है विच अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट इन एम्प्लॉयमेंट एज डिफाइंड बाय सर्विस रूल्स, अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयर. कंप्लेंट मैकेनिज्म के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वेदर और नॉट सच कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर द लॉ or a breach of service rule, an appropriate complaint mechanism should be created in the employer's organization for the redress of the complaint made by the victim. Such complaint mechanism should ensure time-bound treatment of complaints. फिर complaints committee के formation के लिए उन्होंने direction दिया कि complaints committee में एक special counselor भी होगा या support service भी होगी, including maintenance of confidentiality. फिर complaint committee would be headed by a woman and not less half of its member would be women. Further, the possibility of any pressure or influence from senior levels such as complaint committee should involve a third party, either NGO or body who is familiar with the issue of service harassment. ये डायरेक्शन इसलिए दिया गया था जिससे कंप्लेंट कमेटी के ऊपर कोई प्रेशर इन्फ्लुएंस सीनियर लेवल से ना आ सके. ठीक है. और कंप्लेंट कमेटी की जिम्मेदारी बनेगी टू गिव एन एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न ऑफ द कंप्लेंट्स एंड द एक्शन टेकन बाय देम. और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स एंड द पर्सन इन चार्ज विल ऑल्सो रिपोर्ट ऑन द कंप्लायंस विद द अफोरसेड गाइडलाइंस इंक्लूडिंग द रिपोर्ट्स ऑफ द कंप्लेंट कमेटी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. फिर वर्कर्स इनिशिएटिव के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन बनाए कि एम्प्लॉय शुड बी अलाउड टू रेज इशू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस in meetings and other appropriate forum and it should be affirmatively discussed. अवेयरनेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके लिए गाइडलाइंस नोटिफाई की जाएंगी इन अ सूटेबल मैनर. फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेयर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और ओमिशन बाय एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर, employer and person in charge will take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया फॉर अडॉप्टिंग अ सूटेबल मेजर इंक्लूडिंग लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय दिस ऑर्डर. ये लेजिस्लेशन अब 2013 में आया है. अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने वैक्यूम फिल कर दिया, क्योंकि ये वैक्यूम ना होता तो जान लीजिए 1997 से लेके अभी तक देयर वुड हैव बीन नो लॉ टू redress the issue of sexual harassment at workplace. This law was to be there till a suitable legislation was enacted to occupy that field. ठीक है, ये भी डायरेक्शन था इसमें. तो विशाखा गाइडलाइंस थी, एक बार देख लीजिएगा. कोई विशाखा गाइडलाइंस एज सच नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, रेयरली, लेकिन वो मेनली ये पूछते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट को लेके कौन सा जजमेंट था. तो आपको विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बताना होता है कि आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन होता है. पहले वुमेन को लेके लॉ नहीं था, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट एक वर्ड प्लेस को लेके लॉ नहीं था. वुमेन यूज्ड टू फील इनसिक्योर ड्यू टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स. तो ऐसी सिचुएशन में विशाखा रूलिंग बिकेम एन एसेंशियल वेपन इन देयर हैंड. ये ज़रूरी था, इट वॉज वेरी एसेंशियल. इसी रूलिंग को रीटरेट किया गया अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा के केस में, EIR 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 625, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज नो गेन सेइंग दैट ईच इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द प्लेस ऑफ वर्क
results in violation of the fundamental right to gender equality and the right to life and liberty, the two most precious fundamental rights guaranteed by the Constitution of India. In our opinion, the contents of the fundamental rights guaranteed in our Constitution are of sufficient amplitude to encompass all facets of gender equality, including the prevention of sexual harassment and abuse, and the courts are under constitutional obligation to protect and preserve those fundamental rights. The sexual harassment of a female at the place of work is incompatible with the dignity and the honor of a female and needs to be eliminated. So it were some nice guidelines. तो विशाखा और ये जो आपका जो मैंने दूसरा केस बताया, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए के चोपड़ा, AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 625, ये लोकस क्लासिकस है इस पॉइंट पे. इसमें विशाखा मेन है. ये जो BK चोपड़ा वाला केस है, इट इज़ जस्ट रीइटरेटिंग द सेम पॉइंट. तो आपको वो फाइनली मेंशन कर देना है. विशाखा मेंशन करने के बाद सीधे बोल दीजिएगा कि यही पॉइंट्स रीइटरेट किए गए थे इस केस में भी. ठीक है, कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है कि इनमें से कौन सा केस सेक्सुअल हैरेसमेंट से डील करता है एट वर्क प्लेस. तो उसमें कभी कभी आपको विशाखा नहीं दिखेगा, ये अपैरल एक्सपोर्ट्स का केस दिखेगा, अपैरल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा का केस. तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा. ठीक है, बस इसका नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स में कभी कभी आ जाता है. विशाखा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई वुड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ. ठीक है.